Good afternoon, everyone, once again, and let's start with the class. In the last class, we have discussed how the incidence and what are the incidence and impact and incidence of taxes are, and how to determine the burden that is being borne by the buyer as well as the seller uh, in the given case. And what we have started was when the impact of tax is on the seller, कि जब टैक्स का impact seller के ऊपर. Now we will see how the burden of tax on buyer as well as on the seller is going to vary along with the change in the elasticity of demand and supply. That is what we are supposed to see today. आज जो हम देखने जा रहे हैं बेटे, आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि भाई जो बायर्स हैं और जो सेलर हैं वो कितना कितना बर्डन बियर करते हैं, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास. और आज हम देखेंगे हाउ द चेंज इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द सप्लाई is affecting the burden being borne by the buyer as well as the seller. कि भाई जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज आए या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में चेंज आने से बायर या सेलर के ऊपर जो बर्डन आता है, टैक्स बर्डन होता है, हाउ दैट बर्डन इज गोइंग टू बी affected. This is the subject matter of today's class. So I think let's start. In the last class we have seen this, how to determine the burden. Now today we'll see further. Let us see. Let me see that it's auto saving, so let's go wait for a while. Yes. So in today's class, subject matter is we are supposed to see from here onwards we'll observe that elasticity and burden of tax. Well, when we say elasticity and the burden of tax, what we are supposed to see is we are supposed to see two things in this. Two things we will see. How does change in elasticity of demand affects the burden of tax on buyer as well as seller, keeping elasticity of supply constant. Is that okay? The first thing that we are supposed to see is how does the change in the elasticity of demand affects the burden of tax on buyer as well as seller, keeping elasticity of supply constant. Elasticity of supply को constant रखकर, यानी कि there would be no change in the elasticity of supply, and we will see when the change we'll see that with the change in elasticity demand, how does the burden on buyer or seller of a tax is being varying, किस तरह से वो affect होता है. The another thing that we are supposed to see is same, how does change in elasticity of supply affects the burden of tax on buyer
as well as seller keeping elasticity of supply, sorry, elasticity of demand, not supply, elasticity of demand here in this case, keeping elasticity of demand elasticity of demand constant. That means there is no change in elasticity of demand, only there is a change in elasticity of supply. So these are the two cases we are supposed to see today. Yes. Hello, students. Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. All right. All right. All right. So first we'll see how does the elasticity of demand, change in elasticity demand is going to affect the tax burden. First we'll see that. First thing first. Well, question is, how does elasticity of demand affects tax burden? Simple. इलास्टिसिटी डिमांड टैक्स बर्डन को कैसे अफेक्ट करती है? लेट अस सी. We'll draw the different graphs and then we will discuss them one by one. First case is, पहला केस हम क्या ले लेते हैं? Let's choose this is quantity and this is the price on this axis. Suppose we have this is the elasticity, this is the supply curve. Let us assume this is the supply curve, and we have relatively less elastic demand, or you can say inelastic demand. Well, if this is the inelastic demand curve, and if tax, now hold on, if tax T is being imposed, if a tax T, suppose this is the tax amount from A till B point, this is the tax amount, and let's mark the equilibrium price. This is equilibrium point, and this is the equilibrium price P0. And if we draw these lines, this is the price PA, price after tax. This is the price after tax, and well, this is PB, this is the price received by seller after tax. After tax, this is the price received by seller after tax. देखो बेटे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए. उस लास्ट क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैं उसको भी आंसर कर दूंगा. आई डोंट नो, गर्ल का नाम मुझे भूल गया, वो क्या, लड़की का क्या नाम था बच्चे आपका, आई डोंट नो, बट आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, बट आई रिमेंबर योर क्वेश्चन. व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सपोज ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो जब टैक्स इम्पोज नहीं हुआ है, जिस केस में जब तक टैक्स इम्पोज नहीं हुआ है, तो एवरीबडी इज चार्जिंग दिस प्राइस. सपोज दिस इज 10 रुपीज प्राइस पर यूनिट, 10 रुपये पर यूनिट प्राइस है, मार्केट प्राइस है. अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, सपोज करो 4 रुपीज का.
कि 4 रुपीज टैक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है, चार रुपए टैक्स लगा दिया, और ये यहाँ पर है सपोज करो एक तरीके से 8 रुपए या 9 रुपए ही है, ये 9 रुपीज है लेट अस अज्यूम। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 ये कितना आ जाएगा, 13 रुपीज। ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टैक्स है, यहां से ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स है। जो ये रेड लाइन मैंने बनाई है, दिस एंटायर रेड लाइन इज अ टैक्स अमाउंट। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर हम देखें, लेट मी यूज सम अदर कलर, अगर हम देखें तो दिस इज द प्राइस पेड बाय बायर एंड this was the price paid before tax by the buyer and this is the price paid after tax by the buyer. However, the amount of tax is ₹4. ठीक है, तो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर कितना हो गया, ये यानी कि 3 रुपीज का बर्डन बायर पर गया। ये हो गया बर्डन ऑन बायर, बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है, यानी कि बायर पर 1 रुपी पर यूनिट का टैक्स का बर्डन है कि हर यूनिट पर उसे 1 रुपया एक्स्ट्रा, 3 रुपीज पर यूनिट का टैक्स का बर्डन है। देखो, पहले जो बायर था उसे 10 रुपए का पड़ रहा था सामान, अब कितने का पड़ रहा है, 13 का। तो जो ये 3 रुपीज है ये टैक्स का बर्डन है। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे ही आप दूसरी तरफ देख लीजिए, ये था सेलर को। अब बायर पहले जब टैक्स इंपोज नहीं था तो बायर 10 रुपए पे करता था, तो सेलर की पॉकेट में भी 10 रुपीज चले जाते थे, ठीक है, डायरेक्टली। बट क्योंकि अब सेलर के ऊपर इंपैक्ट ऑफ टैक्स है, सेलर के ऊपर इंपैक्ट ऑफ टैक्स है और सेलर को टैक्स पे करना जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो किसका है, सेलर का है। तो अब सेलर जितने रुपए उसे रिसीव होंगे वो सारे के सारे पैसे वो अपनी पॉकेट में नहीं डाल सकता, उसमें से उसे टैक्स का अमाउंट साइड में रखना ही पड़ेगा जो उसे गवर्नमेंट को पे करना है। एम आई राइट? हेलो, Yes, sir. am I clear? Okay, now see, this is the 10 rupees and then we have the 9 rupees over here. So now actually before tax the seller is pocketing ₹10, and now after tax the seller is not able to pocket 10 rupees, even if the price at which the commodity is being sold is 13 rupees, but the seller cannot pocket seller cannot pocket the 4 rupees, cannot pocket the entire 13 rupees. Seller is supposed to pay 4 rupees for tax to the government, and from 13 rupees if we subtract 4 rupees we'll get ₹9. That means the price that is being the price per unit that is being pocketed by the seller is ₹9 per unit. Is that okay? Hello, हेलो, Yes, sir. तो ये इन सबको हम देख लेते हैं। तो ये बर्डन हो गया ऑन सेलर, ये हो गया बर्डन ऑन सेलर, ये हो गया बर्डन ऑन बायर। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन में मैं करके दिखाता हूँ, बाकी सब में आप वैसे ही आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सपोज करो 10 रुपीज़ पर यूनिट थी और ये हमने यहाँ पर इसको नोटिस कर लिया। ये सपोज करो ये हो गया ये 40 यूनिट्स था पहले, तो 10 रुपीज़ पर 40 यूनिट सेल हो रहे थे। 10 इंटू 40 1400 रुपीज़ हो रहा था। अब ये यूनिट क्वांटिटी है, सपोज करो यहाँ पर है, सपोज करो ये है, लेट्स अज्यूम 30, सपोज ये 30 यूनिट्स है, सपोज ये 30 यूनिट्स है। अब ये तो 30 यूनिट्स हैं, तो इसमें क्या हुआ, 30 यूनिट सेल हो रही है। तो अब कोई पूछे कि भाई जो बायर है, बायर ने कितने रुपए खर्च किए, बायर का एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट पॉइंट,
एक्सपेंडिचर बाय बायर। बायर ने कितना एक्सपेंडिचर किया कि बायर ने 30 यूनिट्स परचेज की, कितने रुपए पर यूनिट पर? 13 रुपीज पर यूनिट पर। 13 3 जा कितना हो गया बताओ जरा? 390 सर। है 390। तो यानी कि जो बायर है उसकी पॉकेट से 390 रुपए गए। अब सवाल ये है कि सेलर की पॉकेट में कितना आया? तो रेवेन्यू पॉकेटेड बाय सेलर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 30 यूनिट्स इंटू में 9 रुपीज पर यूनिट उसने पॉकेट किया है, तो 270 हो गया। हेलो यस सर। भाई सेलर की जेब में कितना आया? 9 रुपए पर यूनिट, और 30 यूनिट उसने सेल किया, तो यानी कि 270 रुपए सेलर की पॉकेट में आए। ठीक है। हेलो अब तीसरी बात, टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कितना मिला? 3 रुपीज पर 30 यूनिट्स पर मिला। किसके हिसाब से? 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 120 है, दिस इज 120। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 390। तो मिल गया ना ये हिसाब कि भाई बायर ने 390 रुपए गए बायर की जेब से, जिसमें से 270 रुपए तो सेलर ने अपनी पॉकेट में डाल लिए और 120 रुपए उसने टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे दिए। 390 के 390 सेलर की पॉकेट में नहीं आए हैं, उसमें से 4 रुपए पर यूनिट का उसने टैक्स भी पे किया। इज दैट ओके? हेलो Yes, sir. अब ये देखो, टैक्स बर्डन बाय द बायर, बायर को कितना टैक्स बर्डन वियर करना पड़ा। ठीक है, तो टैक्स बर्डन बायर का क्या होगा कि ये बॉक्स यही है ना? हेलो Yes, sir. बायर के ऊपर जो टैक्स बर्डन है यही बॉक्स है ना, ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 3 इंटू 30। तो टैक्स बर्डन ऑन बायर कितना हो गया? 30 इंटू में 3 90। ठीक है जी। अब ऐसे ही आ जाएगा टैक्स बर्डन ऑन सेलर 30 इंटू में कितने रुपए का डिफरेंस है यहाँ पर? 1 रुपए का, तो 30 रुपीज का, यानी कि टोटल 120 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को गया, जिसमें से 90 रुपए का बर्डन तो आया बायर पे और 30 रुपए का इन पे, यानी कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो दोनों के बीच में शेयर हो गया। जो टैक्स बर्डन है दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इजंट इट? हेलो यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो आई होप लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स प्लीज डू रिप्लाई। क्या समझ आया आप लोगों को ये? यस सर। तो अब ये देखिए, तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है यानी कि इन इलास्टिक है डिमांड, तो आप देखो जो बर्डन ऑफ बायर है वो ज्यादा है, जो बॉक्स है वो ये बड़ा है और इसका बॉक्स छोटा है। ये यहां से भी देख लो, बायर पर बर्डन आ रहा है 90 रुपए का, सेलर पर आ रहा है 30 रुपीज का। इज दैट ओके? हेलो यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब हम बनाएंगे, अब मैं न्यूमेरिकली मैंने समझा दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हर एक में ऐसे ही न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट अब मैं बार बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा। अदर जो एग्जांपल्स लूंगा मैं उनमें हम सीधा क्या करेंगे, सिर्फ बर्डन को देखेंगे। ठीक है सर। हाँ बोलो, हु इज दिस? सर ये सर विशेष। हाँ विशेष बोलो। सर ये रेवेन्यू के बाद में क्या लिखा? सर 13 रेवेन्यू पॉकेटेड बाय सेलर, कि कितना सेलर की पॉकेट में कितना आया? पॉकेटेड
Okay, sir. रेवेन्यू पॉकेटेड बाय सेलर, ठीक है। होल्ड ऑन फॉर वेल, लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव सीन, हाँ बोलो विशेष, अब क्या है, और कोई सवाल है किसी का? Yes, sir. हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? Sir, नाम I क्या want to आपका? ask that, नाम Sir क्या है? Vaibhav. वैभव, हाँ बोलो वैभव, क्या सवाल है? Sir, I want to ask that, can the seller put his burden also on the buyer? यस यस, सेलर इज पुटिंग हिज बर्डन ऑन द बायर। यू सी, जो 4 रुपये टैक्स पे करना था, वो टैक्स का ऑब्लिगेशन तो किसके ऊपर है? सेलर के ऊपर है। पर उस सेलर ने Yes, sir. कमोडिटी के प्राइस में वो टैक्स को मिलाकर बायर के ऊपर बर्डन को शिफ्ट कर दिया। Yes, यही sir. यही तो कर रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? ओके देन, अब हम देखेंगे, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को थोड़ा सा हम वो कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये तो इन इलास्टिक है रिलेटिवली, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, एंड देन वी विल सी। लेट्स ड्रॉ अ कर्व ओवर हियर एंड ट्राई टू सी who will be how much burden. Let's see. This is the price, this is the quantity, and well, this is the supply. अब सपोज करो डिमांड का रिलेटिवली इलास्टिक हो गया है, जैसे कि ये मान लीजिए डी डी इलास्टिक है। टैक्स का अमाउंट है, सपोज कर लो टैक्स है ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। बिफोर टैक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था E0, इक्विलिब्रियम प्राइस ये था E0। आफ्टर टैक्स प्राइस पेड बाय बायर हो गया PA, एंड प्राइस पॉकेटेड बाय सेलर हो गया PB। अगर हम देखें इसमें तो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर ये रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया बर्डन ऑन बायर, ठीक है। और अगर इसको हम देखेंगे वंस अगेन, ये ब्लू शेडेड रीजन, ये हो गया बर्डन ऑन सेलर, ठीक है। अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और थोड़ा कम करते हैं, और सॉरी बढ़ाते हैं, आई मीन इलास्टिसिटी को और बढ़ाते हैं। Quantity, this is price. Suppose this is elasticity of supply, and we have relatively more flatter or relatively more elastic डिमांड कर्व। देखो ये डिमांड कर्व इससे ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं टैक्स। सपोज टैक्स इज द T, this is the text A and D. Now before tax, this is the equilibrium price P0, this is the price of tax, and
This is the price pocketed by seller after tax, PV. Let us shade the region. Well, the spread region, smaller rectangle, smaller red shaded rectangle is the burden on buyer, and this one is ये हो गया burden on seller, burden on seller, ये burden on seller है, ये burden on buyer हो गया, ये burden on seller हो गया। तो आप देखो जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है डिमांड की, ठीक है, तो जो रेड बॉक्स है उसका साइज छोटा हो रहा है, यानी कि बर्डन ऑन बायर जो हो रहा है कम हो रहा है और बर्डन ऑन सेलर बढ़ रहा है। यस और नो? ऊपर देखिए जो ऊपर फिगर थी उसमें डिमांड इन इलास्टिक थी रिलेटिवली, यानी कि स्टीप हो रहा था डिमांड कर्व। ये देखो तो बर्डन ऑन बायर जो था वो ज्यादा था, बर्डन ऑन सेलर कम था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हमने ये पढ़ा था इलास्टिसिटी AR MR के रिलेशनशिप में कि जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो एनी इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, विल डिक्रीज टोटल रेवेन्यू। इज दैट ओके? Yes, sir. कि जिस टाइम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, कि जब इलास्टिसिटी जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो अगर प्राइस बढ़ाओगे तो टोटल रेवेन्यू कम होगा। यस और नो? हेलो, Yes. Yes, sir. ठीक है ना। अब टोटल रेवेन्यू कम क्यों होगा? क्योंकि डिमांड इलास्टिक है। तो डिमांड इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर रिस्पॉन्सिव टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज होगा उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो जाएगा। यस और नो? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप टैक्स के अमाउंट को इंक्लूड करोगे प्राइस में और कीमत बढ़ाओगे तो बायर उसे खरीदना कम कर देंगे। अब ये देखो ध्यान से देखो, जैसे ही इलास्टिसिटी ये थी तो इस केस में क्वांटिटी में जो कमी आई है वो Q0 से ये Q स्टार तक आई है, इतना डिफरेंस हुआ है। अब यहां देखो इसमें सेम Q0 से, सपोज दिस इज E0 एंड अगेन दिस इज P पॉइंट, दिस इज अगेन Q स्टार, तो ये डिफरेंस जो है ज्यादा है। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही इलास्टिसिटी डिमांड की बढ़ी तो जरा सा प्राइस बढ़ते ही कंज्यूमर्स ने ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड को बहुत ज्यादा कम कर दिया, है ना। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा है, यहाँ कम आए रिलेटिवली। और ऊपर देखोगे तो उसमें और थोड़ा कम होगा, ये देखो यहाँ पर और कम है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करता है। इसलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसलिए क्या होता है कि अगर डिमांड इलास्टिक होगी, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है तो जो सेलर है वो बर्डन को शिफ्ट नहीं करता है या कम बर्डन शिफ्ट करता है। किसके ऊपर? बायर के ऊपर। बायर के ऊपर क्या करता है? कम बर्डन शिफ्ट करता है, ठीक है। इज दैट ओके? हेलो। और इसका उलट देखें तो इलास्टिसिटी जब लेस देन 1 है तो एनी इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है। डिमांड इनइलास्टिक होने का मतलब क्या है कि भाई प्राइस में अगर चेंज होगा भी तो क्वांटिटी डिमांडेड में इतना कोई ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कि जो बायर है प्राइस बढ़ने पर भी कमोडिटी को खरीदता है, अपनी डिमांड ज्यादा कम नहीं करता है, इसलिए सेलर सक्सीड कर जाता है उसके ऊपर बर्डन को शिफ्ट करने में। एम आई क्लियर? हेलो, इज दैट ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. बेटे समझ आया? Yes, sir. Yes. ठीक है। Let us see two extreme cases when the demand is perfectly elastic or inelastic. Well, let us see two extreme cases.
this. This is origin, this is price, this is quantity. Suppose perfectly inelastic demand. कि डिमांड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है. तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में क्या होगा, ये डिमांड कर्व बनेगा ऐसा, डी डी वर्टिकल, ये क्वांटिटी होगी. सपोज पहले जो सप्लाई थी वो हमारी थी ये, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, this is the supply curve. This is the supply curve, this is the equilibrium point E0. This is the equilibrium price P0. Now suppose tax is being imposed. Suppose ये टैक्स अमाउंट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ब्लू शेड मैंने किया है, क्योंकि सप्लाई कर्व अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो सप्लाई कर्व वर्टिकली शिफ्ट होगा, यस और नो, ये वर्टिकल शिफ्ट आएगा ना सप्लाई कर्व में. तो ये S0 था, ये S1 हो गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यही रहेगा यहीं पर, इसी क्वांटिटी पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा. ऊपर केसेस में क्या हो रहा था, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट कर रहा था, क्यों, क्योंकि जो यहाँ से अगर डिमांड कर बनाओगे, क्योंकि क्वांटिटी शिफ्ट कर रही थी. यस और नो, हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट कर रहा था क्योंकि क्वांटिटी शिफ्ट कर रही थी. पर क्योंकि यहाँ पर डिमांड इनइलास्टिक है तो क्वांटिटी इज नॉट सपोज टू शिफ्ट, क्वांटिटी तो शिफ्ट होने से रही है ना, और क्वांटिटी यही है तो यानी कि यही इक्विलिब्रियम रहेगा. ये हो गया एक तरीके से पी ए, और P0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा PB, कि सेलर को टैक्स से पहले भी इतना ही प्राइस पॉकेट में जा रहा था, टैक्स के बाद भी इतना ही जा रहा है, तो बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर आ जाएगा, बायर के ऊपर. तो यानी कि एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द बायर, ये पूरा शेडेड रीजन, एंटायर टैक्स बर्डन इज ऑन बायर. इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. बेटे किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए. यस बेटे, किसी ने इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है? चलिए, नहीं पूछना तो लेट्स प्रोसीड. नाउ विल सी इन केस व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, another extreme case. Suppose this is the demand curve, perfectly elastic demand curve. That means this is the price. In this case the price is not going to change, and let's have, this is the supply curve, this is the supply curve S0, this is the equilibrium point, and this is the equilibrium price P0. Let us assume the tax, let's see the supply, because of imposition of tax T,
the supply curve shifts leftwards. Now S1. Now in this case, as the quantity is being shifting, this is the tax amount, this is A point, this is B point, this is the tax amount, and that's right, this is the equilibrium quantity Q0, this is Q star, let me have, this is Q star. अब price before tax, the price is this much, price paid by buyer is this much, and price received by seller is this much. But when the tax is being imposed, equilibrium is at this point A, the price paid by buyer is this, the price received by seller is, or pocketed by seller is this. So that means whatever this blue box is, whatever this entire box is, this is the, in this case, entire tax burden is on seller. That means when the demand is perfectly elastic, the seller will not be able to shift the tax burden to the buyer. He himself has to bear the entire burden. But when the demand is perfectly inelastic, the seller succeeds in shifting the tax burden on the buyer, and entire tax burden is being shifted onto the buyer after incorporating it into the price. So these are the different cases when the demand, when with the elasticity of how, with the change in the elasticity of demand, the tax burden changes. Is there any doubt or any other question? Yes, students, क्या कोई question है आप में से किसी का? Sir, I just want to ask one thing. Yes, what's your name? Sir, Dipali. Dipali, yes Dipali, please ask. सर इसमें हमारा मतलब जो टैक्स बर्डन है वो इसीलिए डिफर कर रहा है क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है, तो सेलर डिसाइड करते हैं. सपोज बहुत ज्यादा परफेक्टली इलास्टिक है तो सेलर जान के सारा टैक्स बर्डन फिर खुद पे करता है. हाँ, जानबूझ के, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने बर्डन सेलर बायर पर डालने की कोशिश की तो बायर विल नॉट बाय हिज कमोडिटी, यू नो. ओके सर, ठीक है ना. तो he is fearing of, he is afraid of losing his customers. That's why he doesn't shift the tax burden onto the buyer. Okay sir, thank you sir. Yes. Any other question? Sir, I want to ask something. What's your name? Sir, Vaibhav. Vaibhav, please do ask. सर फर्स्ट केस में आपने लिखा है कि जो टैक्स बर्डन ऑन जो सेलर है वो 1 रुपीज होगा पर यूनिट. तो सर वो तो लेकिन बायर ही दे रहा है ना, तो सर टैक्स बर्डन सेलर पे कैसे होगा फिर? अभी मैं बताता हूँ, अभी बताते हैं. ये जो न्यूमेरिकल किया था इसमें कह रहे हो आप? यस सर. चलो इसको देखो ध्यान से. क्या नाम है, आपने क्या नाम बताया? तो वैभव. वैभव, ध्यान से देखो. देखो बेटे, अब जब टैक्स नहीं था तो 10 रुपए पर यूनिट पे कर रहा था सेलर और बायर, और 10 रुपए ही रिसीव हो रहे थे सेलर को, क्योंकि सेलर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं था गवर्नमेंट को पे करने का टैक्स, क्योंकि टैक्स इम्पोज्ड ही नहीं था तो सेलर पे क्यों करेगा. हेलो. यस सर, यस सर. ठीक है. फिर 10 रुपए, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा पर यूनिट पर 4 रुपए टैक्स लगेगा. अब मैं ये जो फिगर यहाँ बना रखी है इसमें मैं एक बार एक डॉटेड सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये हो गया. ठीक है. तो जब ये सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ S0 से S1 तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ. इज दैट ओके वैभव? यस सर. ठीक है. अब जब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब अब इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया 13 रुपीज. एम आई राइट? यस सर. अब इस 13 रुपीज में से अब ध्यान से देखो 4 रुपए टैक्स है, तो यानी कि बायर तो 13 रुपए पे करेगा सेलर को. ठीक है.
हेलो, यस सर। पर जो सेलर है वो 13 के 13 अपने पास रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेलर को 4 रुपए टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन किसका है? सेलर का। एम आई राइट? यस सर, यस सर। तो यानी कि 13 रुपीज में से सेलर के पास कितने आएंगे? 9 रुपीज। ये इस पॉइंट तक 9 रुपीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब Yes, sir, सवाल yes, sir. अब सवाल ये हुआ कि बायर ने पे किए 13, सेलर के पास 9 रुपीज आए और टैक्स था 4 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स इंपोज होने से पहले जो बायर पे कर रहा था वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा था, यस सर। और बायर 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा था, और टैक्स के बाद बायर कितने रुपए पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा है? 13 रुपीज। तो 13 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा है। इज दैट ओके? यस सर। अब ये देखो, जब टैक्स नहीं था तो सेलर की पॉकेट में 10 रुपए आ रहे थे, क्योंकि बायर 10 रुपए पे कर रहा था, पूरे के पूरे 10 रुपए उसकी पॉकेट में आ रहे थे। यस सर। पर टैक्स लगने के बाद सेलर की पॉकेट में कितने रुपए आ रहे हैं? 9 रुपीज। तो यानी कि 1 रुपया कम आ रहा है, यस सर। जबकि बायर सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है पहले से। यस सर, यस सर। ठीक है, बट Yes, सेलर sir. को पहले से 1 रुपया कम रिसीव, यानी कि सेलर जो 1 रुपया टैक्स है सेलर अपनी जेब से दे रहा है, तभी तो उसे कम हो रहा है। यस सर। हाँ, टैक्स बर्डन फिर 1 रुपीज सेलर पर हो गया। और आगे ना, आगे समझ में? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? ओके दैट लेट अस सी फर्दर। तो ये था, तो इससे हमने क्या रिलेशन निकाला कि आप ध्यान से देखो इस चीज को कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है अगर इंक्रीज हो रही है तो इसके क्या इम्प्लीकेशन हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ रही है तो बायर पर टैक्स का बर्डन कम हो रहा है। प्लीज पार्टिसिपेट। हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है ना? भाई ये देखो, यही तो हमने देखा ना, इलास्टिसिटी बढ़ रही है तो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर जो है वो कम हो रहा है। और इलास्टिसिटी अगर कम हो रही है, ये अपना वो म्यूट कर लीजिए, कौन स्टूडेंट है ये इको कर रही है आवाज। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर बढ़ा है। यस और नो? प्लीज पार्टिसिपेट। Yes, sir. तो यानी कि ये एक तरीके से इनवर्स नेगेटिवली या इनवर्सली रिलेटेड हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सेलर अगर हम देखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है तो सेलर पर बर्डन ज्यादा है। ये देखो यहाँ Yes, sir. परफेक्टली इलास्टिक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो सेलर पर बर्डन कम है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली हो गया या डायरेक्टली रिलेटेड। इसका मतलब हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर सेलर। और इनवर्सली रिलेटेड है बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर। एम आई राइट? हेलो? Yes, sir. इसको हम ऐसे Yes, भी लिख sir. सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना आप में से किसी ने? अरे भाई, किसी भी स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन पूछना इससे रिलेटेड? यस?
हेलो स्टूडेंट्स, No. No, sir. तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।